You have to come up to the Telangana height to attain separate Garo land. गारो लैंड के लोगों को तेलंगाना का हिम्मत आना चाहिए अगर आपको नया राज्य चाहिए तो. This small height will not do. You may be small in height, but your glory, your culture is taller than your height. Members of the Garo State Movement Committee, state movement committees of other demands like Tipra land, Gorkha land, if I'm missing anyone, Karbi Anglong, and the other larger demands of larger states like Vidarbha and Bundelkhand. All of you may ask me, and one of the questions, especially Ba Pangnyang has asked me, why are people of Telangana here? When we fought for Telangana in 60s, in 90s, the allegation against us that we want to separate from India. There are historical reasons for that. When the British left India, they gave 3 choices. Don't forget, British had only 9 states in India and the princely states were 562. They gave an option. Go to Pakistan, be with India, or if you want, you can be independent. The state to which I belong, Telangana, under the Nizam, the Nizam wanted to be independent. He didn't want to go to Pakistan, he didn't want to be a part of India. So 3 states joined India late. Jammu and Kashmir through annexation. There was a tribal revolt in Jammu and Kashmir. That mistake was rectified by the BJP government only recently by abolition of Article 370 from the Constitution of India. Then we had Junagadh in Gujarat. Even that king did not want to join India. If India became free on 15th August 1947, Hyderabad became free only towards the end of 1948. We joined the Indian Union. So when we asked for a separate state, they told us, you want to separate from India. So we didn't want such an allegation against us. So when we, in the 1990s, the third round of, first we fought for separate Telangana in 50s. We again fought for Telangana in 70s. When we started this movement in 1990s, one of the founders of that movement is with me on the dais, Mr. Pasham Yadagiri, who started the 1991 movement. The 1991 movement, it took 20 years to fructify in 2014 into the 29th state of the Indian Union. When we thought of Telangana, I joined the Telangana movement in 2004. I fought for it for 10 years. I am a senior advocate in the Supreme Court. Today you may ask me, some of them I have asked. One answer to Ba Pangnyang is that when we asked for a separate state, the slogan was, only new states will make for new India. नव राज्यों का निर्माण होगा तो नव भारत बनेगा. उनका एक सपना है पंगमियांग का कि वो बोल रहे हैं, मेरा एक सपना है कि मैं गारोलैंड बनते देखना चाहता हूं. आपका सपना, it is not a dream, it is a reality waiting to manifest. If India is to become strong, you all know the next 100 years belongs to Asia. एशिया का मतलब है चाइना और इंडिया, और कोई नहीं है, तीसरा देश नहीं है. अगर अमेरिका के टक्कर में आज कोई दुनिया में देश है जो उसका टक्कर में है, वो चीन है और इंडिया है. So India is a rising power. If India has to become strong, it has to, if a new India has to be created, a strong India has to be created, it is not possible without strong states, new states, and every person here. अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो आप भारत को मजबूत नहीं बना सकते हो. अगर भारत मजबूत होना है तो मुझे रोटी कपड़ा मकान और नौकरी भी चाहिए. कहता हूं, हमारे लिए भूटान एक मॉडल है. दिल्ली के टेक्स्ट बुक में, मैं दिल्ली में
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल के टेक्स्ट बुक ने, वहां का चीफ मिनिस्टर ने ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि भूटान में कब आया। ये नहीं जानते कि भूटान ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस वो कल परसों आए सो कंसेप्ट नहीं है, बहुत पहला वाला कंसेप्ट है वो। वहां पर भूटान में 1729 में इंट्रोड्यूस किया है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वहां का सबसे पहला जो राजा था गवांग नामग्याल, 1729 में इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने कहा इफ गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट हैप्पीनेस फॉर इट्स पीपल, देयर इज नो पर्पस फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जिस्ट। आप लोगों को खुश नहीं रख सकते हो तो आप कुर्सी छोड़ो, वहां बैठने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब 1729 से चलते चलते आज जो है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया है, एक कंसेप्ट हो गया है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आज इतने साल 200 साल बाद, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का मतलब है 4 इसके पिलर है। एक, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, अरे भाई नेहरू वाले वो पहाड़ पे नेहरू होगा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले सुन लो हम जो बोल रहे हैं। वहां बैठ के इतना बड़ा बिल्डिंग में रह के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रहा है। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को रिसर्च करना चाहिए कि लोगों को खुश रखना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैलकुलेट करना हो तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भूटान कहता है कि 4 फोल्ड क्राइटेरिया है। एक, देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2, there should be equitable socio-economic development. 3, there should be preservation of culture and protection of environment. और चौथा इसका जो पिलर है वो है there should be good governance. ये 4 पिलर है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। और दिस जर्नी स्टार्टेड इन 1729। दिल्ली के टेक्स्ट बुक में ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस करके लिखने से ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं आता। मैं दिल्ली में रहता हूं, 60% of Delhi is a slum. 60% of Delhi is a slum and 2000 करोड़ के साथ आप एक नया पार्लियामेंट का जो है भवन बना रहे हो, 2000 करोड़ के साथ। सड़कें ठीक नहीं है, पानी ठीक तरह नहीं आता है, बिजली नहीं आता है, पढ़ाई नहीं होता है, अस्पताल नहीं है, और 2000 करोड़ किसके लिए? ये नया पार्लियामेंट के लिए। वो भी मैं बताता हूं उसका प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो भाइयों, what I am telling you is not only in fact many have referred to many important aspects, जैसे अपना जो बा डॉनबॉक ने कहा, हिटो जो ऑर्गेनाइजेशन, कई legal issues he has raised. We will discuss it. Now you may ask me as a Supreme Court lawyer, what are you doing here? I'm telling you frankly, if there is anything that woke me up, 30 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अगर कोई चीज हमारे आंख को खोला है तो वो था कोविड ने खोला है। 2 साल हमको घर में बिठाया और सोचने का टाइम दिया, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, वकालत करके क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है। यहां पर हमारे से पहले जो वक्ता है, दे हैव टेकन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। आई एम टेलिंग यू, द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज अमेरिका। 10 पेज का भी नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हजारों पेज में जाता है, और 70 साल में 100 बार अमेंड किया है। यह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 70 साल में आप 100 बार अमेंड किया है? एक और सवाल पूछता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट राइट्स रिकॉग्नाइज्ड है, सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट लैंड्स का रिकॉग्निशन है। मैं पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटी लैंड के लिए क्या प्रोटेक्शन है? मैं भी तेलंगाना का हूं, हमारे पास भी ट्राइब है, हर किस्म के ट्राइब है। 3 तेलंगाना हैज 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स। वी हैव हंटर गैदरर्स, वी हैव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वी हैव सेटल्ड एग्रीकल्चर। 1/10 of Telangana is tribals. They are as old as a Garo or a Kasi or a Jaintia. And their land, अगर एक ट्राइबल को बुला के बोलोगे कि I want to give you land, उसको समझ में नहीं आएगा, because that tribe believes in community ownership of land.
And Indian constitution does not recognize community ownership of land. What kind of a constitution is this? What COVID woke me up to? Agar Indian constitution, if it has failed, not because of its length, even though it is long, it is still workable. Chalta hai gaadi. Lekin what it lacks is, it lacks foot soldiers. अगर आपके पास एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, अगर आर्मी नहीं होगा, क्या कर लोगे एयरफोर्स से? एयरफोर्स से क्या दुश्मन का जमीन कब्जा कर सकोगे? दुश्मन के में जमीन में जाके अपना फ्लैग लगा सकोगे? कहाँ प्लेन से लगाओगे फ्लैग या शिप में से लगाओगे फ्लैग दुश्मन के जमीन पे? अरे भाई, उसके लिए पैदल जाना पड़ता है, सैनिक को पैदल जाके वहां झंडा गाड़ना पड़ता है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sitting in Delhi, people will not know about Indian constitution. There is a need to take the constitution to the people, understand their needs and bring about changes in Delhi. गारोलैंड तुरा में नहीं बनेगा, शिलोंग में नहीं बनेगा. गारोलैंड बनेगा तो दिल्ली में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा. मेघालय असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है. ऐसे रेजोल्यूशन हमने तेलंगाना में बहुत पास किया. हम तो मनमोहन सिंह पे मजाक करते थे जब त्रिपुरा लैंड वाले हमको अगरतला बुलाए. हमने कहा तब के प्राइम मिनिस्टर पे उसको सुनाई नहीं आता, बोलना नहीं आता, किसी और की बात सुनता है. अभी जो प्रधानमंत्री में मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं. लेकिन अगर भारत को ताकतवर बनना है, इफ वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, ए न्यू इंडिया, जिसका सपना प्रधानमंत्री भी देखते हैं, एक नव भारत का निर्माण. अरे भाई, नव भारत का निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे, न्यू स्टेट्स. एंड फॉर दिस देयर हैज टू बी क्राइटेरिया. आई एम टेलिंग यू, many have said before me, the speakers, that is a historic meeting, no doubt about it. This is the first meeting after COVID. I have not stepped out of anywhere. Last year, when Munish took over as the chairman, president of the NFNS, National Federation for New States, ये संस्था जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने स्टार्ट किया था, उसका नाम था इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स. हमने कहा जब तेलंगाना बनेगा 4 करोड़ रहेंगे हम, ये स्मॉल स्टेट थोड़ी है 4 करोड़ का, ऐसा निकालो, स्मॉल नहीं, न्यू स्टेट्स. सो व्हाट दे सेड, दिस इज अ हिस्टोरिक मीटिंग. आई एम टेलिंग यू, देयर आर 3 विटनेसेस टू द मीटिंग टुडे. आई एम नॉट जोकिंग. द विटनेसेस आर दोस क्लाउड्स. The witness, another witness is, as a lawyer, I am always bothered about witness. 3 विटनेस होंगे इस हिस्टोरिक मीटिंग का. मैंने कहा ड्रीम नहीं है, इट्स अ रियलिटी वेटिंग टू बी बॉर्न. दिस क्लाउड्स आर अ विटनेस टू दिस, दिस सॉइल इज अ विटनेस टू दिस, एंड दिस थिंग इज अ विटनेस टू इट. अगर इंडिया में रेवोल्यूशन आएगा तो इसके जरिए आएगा. अरे हमने देखा इजिप्ट में क्या किया सेलफोन ने क्या किया इजिप्ट में, सरकार को उड़ा दिया. ये सेलफोन कुछ भी कर सकता है. जब सेलफोन इंट्रोडक्शन हुआ 1984 में, या फोन इंट्रोड्यूसिंग हुआ, कब तो पब्लिक कॉल ऑफिस होता था. सैम पित्रोड़ा जिंदगी भर बाहर रह के आया, राजीव गांधी और वो मिलके जब पब्लिक कॉल ऑफिस शुरू किए, हर बस्ती में टेलीफोन पहुंच गया. उसके बाद में स्मार्टफोन आ गया, तो हम समझे अरे यहाँ इतना गरीबी है, फोन के साथ क्या करेगा. आज मेरा मेड सर्वेंट यही लेके आती है, मेरा लेबर यही लेके आता है. अगर हम सबको कुछ, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच बाइंड्स अस टुगेदर, इट इज सेल फोन. मजाक में कहा जाता है कि देयर इज नो एक्सेस टू टॉयलेट्स इन इंडिया, बट देयर इज एक्सेस टू ए सेल फोन. बट दीज 3 आर विटनेसेस. दिस हैज टू बी a reality. Why I am saying is, look at the world situation. If a 41-year-old Indian born can become prime minister of a country over which you said the sun never sets. The sun never sets over British India. लेकिन एक भारतीय जो रेस्टोरेंट में काम करता था, वहां जाके आज प्रधानमंत्री बना है अमेरिका में, लंदन में. और दूसरे जगह अमेरिका में वहां का वाइस प्रेसिडेंट वो भी इंडियन है, तमिलनाडु की है ओरिजिन. तो एक भारतीय को मौका नहीं मिल रहा है, गारो वालों को मौका नहीं मिल रहा है. अगर मौका मिले तो वो दिखाएंगे वो क्या है. यहां आने के बाद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 2 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा. मैं गलती किया जिंदगी में, एक गलती किया. 2016 में हमको डॉक्टर मुगल सांगमा ने कहा आप आके हमारे पास एडवोकेट जनरल बनो. मैं बाहर का हूं,
मैं कैसे बनूंगा, कभी भी मेरे सर्विसेज तेलंगाना में ज़रूरत पड़ सकते हैं। ये सब करके हमने एडवोकेट जनरल नहीं बना, एडवोकेट जनरल का पोस्ट को कन्वर्ट करवा के हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल बना मेघालय के लिए, लेकिन दिल्ली में। 1 साल बाद उन्होंने बोला ये काम नहीं चलेगा, आप शिलोंग आके रहो। तो 1 साल मैं शिलोंग में रहा, वहाँ देखता था मैं, मुख्यमंत्री गारोलैंड, मेरा कुक गारोलैंड, मेरा ड्राइवर गारोलैंड, बीच में कोई गारो नहीं है। मेरा ड्राइवर गारो है, अच्छा खाना खिलाता है, चिकन खिलाता है, पोर्क खिलाता है, और ड्राइवर ढंग से चलाता है। लेकिन अरे सेक्रेटेरिएट में एक को दिखाओ, लॉ सेक्रेटरी के अलावा, लॉ सेक्रेटरी के LM सांगवा करके वो गारो के थे। मैं उनसे पूछता था, अब एक ही है इतने बड़े सेक्रेटेरिएट में, कोई गारो नहीं है। और दूसरा मैं बोला नहीं, ये वीकेंड मैं हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाता था। सॉरी आई एम टेकिंग मोर टाइम देन, उन्होंने कहा 5 मिनट हो गया। तो वो हम बोलते थे वीकेंड हम गारो जाना चाहते, वो बोले नहीं, अगर जाएंगे तो सरकारी व्हीकल मत ले जाओ, सेफ नहीं है, वो जंगल के रास्ते से मत आओ। मैं बोला अगर जाऊंगा तो मैं जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। उसे नो, अब गुवाहाटी जाकर, मैं गुवाहाटी क्यों जाऊं? अगर मैं मेघालय के कैपिटल से अगर तुरा जाना चाहता हूं, मैं 300 किलोमीटर असम में क्यों घूमूं? मैं गारोलैंड में घूमना चाहता हूं। नहीं, इस तरह के एनोमलीज दूसरे जगह पे भी है, ओडिशा में है, पंजाब में है, और जगह है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जाम्पल यू टेक, एक और एग्जाम्पल है अपना ये क्या मिकलीगंज करते हैं, क्या है अपने जलपाईगुड़ी के पास, एक बताता हूँ। हाँ, ये एक जगह है मिकलीगंज, जलपाईगुड़ी से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर फ्रॉम जलपाईगुड़ी, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कूच बिहार से 110 किलोमीटर दूर। तुरा यहां है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है 300 किलोमीटर दूर, वो भी पूरा जो है गुवाहाटी असम से घूम के जाना पड़ता है या जंगल का रास्ता लेना पड़ता है, और बोलते हैं कि रात के टाइम में जंगल का रास्ता मत लो। फिर कैसे पहुंचेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा? इसी तरह एक जगह है फगवारा करके, कपूरथला का सब डिवीजन है। कपूरथला का सब डिवीजन फगवारा जाने के लिए मुझे पूरा जलंधर डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ता है फगवारा जाने के लिए। उसी तरह अब देहरादून जाएंगे तो केम्प्टी फॉल्स है, केम्प्टी ऋषिकेश हरिद्वार लग के है, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार के नीचे नहीं है, ऋषिकेश देहरादून के नीचे है, और देहरादून के पास केम्प्टी फॉल्स है। केम्प्टी फॉल्स देहरादून में नहीं, ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं है। केम्प्टी फॉल्स जो देहरादून में है वो देहरादून में नहीं है, वो तेरी गढ़वाल में है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा? तो व्हाट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू इज, प्लीज रिमेंबर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एक्सटर्नल बाउंड्रीज आर रिजिड, इंटरनल बाउंड्रीज आर फ्लेक्सिबल। और इंटरनल बाउंड्रीज का कोई फाइनलिटी नहीं है। हम लोग डिमांड करना चाहिए कि एक दिल्ली में आप सभा लगाओ, हम भी अटेंड करेंगे, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए परमानेंट बेसिस पे। जब तेलंगाना बना 10 जिले थे, आज तेलंगाना 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। 10 districts became 33 districts. As my friend said, why shouldn't India be more number of states? United States is 50 states. Why can't India be 100 states? But let me not take the logic so far. दुनिया में सबसे पहला फेडरेशन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका है, वहाँ का फेडरेशन हमारा फेडरेशन अलग है। वहाँ जो है each state has merged and formed a union. In India, the union got formed first. How did the union get formed first? By integrating 9 British states and 562 princely states. इन सबको बना के पहले उन्होंने यूनियन बनाया। यूनियन बनने के बाद स्टेट्स बने। तो हमारे मित्र हमसे पहले कह रहे थे कि ऑन द see what happened, I'll tell this much and I'll not take because वरना ये क्लास हो जाएगा। ये 1905 में करजन ने कहा हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। वो एजिटेशन चला 1905 से लेकर 1910 तक। 1910 में उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे। क्या अलग नहीं हुआ क्या? 1905 में बंगाल को डिवाइड करना चाहते तो आपने एजिटेशन चलाया, 1910 में आपने कहा नहीं करेंगे हम डिवाइड। तो क्या 1971 उससे पहले 1947 में नहीं हुआ क्या?
ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? या ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं हुआ क्या? उसी तरह यूएसएसआर भी एक आर्टिफिशियल यूनियन था, क्या नहीं टूटा क्या? आज कहाँ है यूएसएसआर? रशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक ऐसे छोटे छोटे देश बन गए। रशिया टूट गया। तो इसी तरह यहाँ भी जो है, पहली बार, मैं हिस्टोरिक इसलिए कह रहा हूँ कि 1874 में गारोलैंड को इंग्लिश ने अपने कब्जे में लिया है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जानता भी नहीं है। 1857 में म्यूटनी हुआ, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट के खिलाफ गारोलैंड को इंग्लिश ने अपने कब्जे में लिया 1874 में। उसके बाद में 1919 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1930 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1935 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1940s में रीऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन उतना पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेट अस टेक ए कट ऑफ पॉइंट ऑफ 1971। तो अभी आज के दिन वो 100 स्टेट बनेंगे, 50 स्टेट बनेंगे, वो सब नहीं। फर्स्ट डिमांड शुड बी, देयर शुड बी ए परमानेंट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी state reorganization commission to reorganize internal boundaries. It should be a permanent affair. अब तेलंगाना आंध्रा अलग हुआ, we are still fighting for about 20-30 villages. वो आंध्रा को जाना चाहिए, तेलंगाना को जाना चाहिए। वो लोग आंध्रा नहीं जाना चाहते, लेकिन वो जियोग्राफिकली वो उधर जाना पड़ेगा। तो ये पूरे प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए आप एक परमानेंट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाओ, वो ये सब देखेगा। बट हम एक ही कह रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको देश का इकोनॉमी को मजबूत करना है, यहाँ मैं 2 दिन से मैं घूम के देख रहा हूँ, आपका जो क्वालिटी ऑफ ऑरेंज है और दूसरे फ्रूट्स है, और उससे क्या क्या नहीं बन सकता। हम दिल्ली में रह के जब कभी वीआईपी आता है, कोई देश का जो हेड ऑफ स्टेट आता है, हम एक रेड कारपेट डालते हैं उनके, रेड कारपेट वेलकम। लेकिन यहाँ आने से ऐसा लगता है जहाँ कहीं हम जाते हैं एक ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। गारोलैंड, if Sikkim can be an organic state, Garoland can be a green state, first green state of India. इतना ग्रीनरी है, आप जानते ही हैं। भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 60% ऑफ द लैंड विल बी अंडर फॉरेस्ट, और कितना फॉरेस्ट भूटान का जंगल में है? 73%। कानून कहता है 60%। यहां पर इंडिया में क्या होता है, हमारा 30% फॉरेस्ट में रहना है, 40 नहीं, आपके पेपर पे 40% 30% रहेगा, एक्चुअली वहां पर सिर्फ 15% रहेगा। पूरा चोर देश है ये, पूरा नकली, फर्जी, हर एक चीज नकली दिखाते हो। आपका इन्फ्लेशन रेट गलत दिखाते हो, ग्रोथ रेट गलत दिखाते हो, जितना फिगर्स आप देते हो पूरा गलत फिगर है। आप कहते हो 30% फॉरेस्ट इंडिया में जंगल है, नहीं है, 15 से ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लिखा के दिखाते हो कि ये है 30%। वहां जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 60%, वहां एक्चुअली है 73%। और वहां का नेशनल पार्क कितना जमीन पे है? 51% ऑफ भूटान इज नेशनल पार्क। क्या बात कर रहे हैं? वहां का कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भूटान का कहां पहुंचा? क्या गारोलैंड पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं हो सकता? आपके पास इतने मुख्यमंत्री थे। मैं इतना कह के छोड़ देता हूं, इतने लोग हमसे बात किए हैं। पीए सांगमा हमसे, मैं किसी का कोई जो बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। हम जब नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स बनाए, NFNS बनाए, पूर्णो सांगमा हमारे पेट्रन थे, उन्होंने हमसे डिस्कस किया। उसके बाद में कई लोग डिस्कस किए। यहां जो डिप्टी कमिश्नर थे वो हमको शिलोंग में बोलते थे, नहीं इनका कल्चर अलग है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये अलग राज्य होना चाहिए। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो काम के करे, इंग्लिश डिप्टी कमिश्नर नहीं, अभी हाल ही में जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों आज के दिन वो लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पोस्ट में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इनका जेन्युइन डिमांड है। लेकिन पूर्णो पीए सांगमा ने हमसे बोला, कई ऑफिसर हमसे बोले, लेकिन जब हमको निकमन ने बोला तो हमको लगा ये आदमी में दम है, ये जो बोलता है ये कर सकता है। मैं तो इतना आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, डोंट लूज दिस मैन, send him to assembly, not alone, send him with another 4 or 5 MLAs. I'm telling you, this man, if he is truthful to his mission, किसी ने कहा विजन को मिशन बनाओ,
ये आदमी ये विजन को साकार कर सकता है. ही कैन रियलाइज, ही हैज दैट स्ट्रेंथ, ही हैज दैट कमिटमेंट. ही इज नॉट सम. आज हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं है. हालांकि 2009 में मैं एमपी का इलेक्शन लड़ चुका हूं बीजेपी के टिकट पे. लेकिन फर्स्ट टेस्ट, लेट अस पुट द इंडियन पार्लियामेंट टू टेस्ट. डज द इंडियन पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट इंडियन पीपल? आई एम टेलिंग यू, दिस असेंबली हियर रिफ्लेक्ट्स मेघालय असेंबली मोर देन द मेघालय असेंबली, क्योंकि दिस इज पीपल्स असेंबली. इंडियन पार्लियामेंट टुडे इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इंडियन पीपल. आप पूछेंगे, आपके पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, आप भारतीय नागरिक हो, यू आर अ सिटीजन. एज एन एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन आई एम सेइंग I am not a citizen of India because I have not got the benefits of being a citizen. I am still a voter. Government of India recognizes me as a voter, not as a citizen. If I was a citizen, it should have recognized my rights. It should listen to my voice. Does the Indian government, does any government in India listen to people's voice? Except at the time of election. And unfortunately, we take money and vote to them. आज के दिन election जो है, it's just a कार्निवल ऑफ मनी. अभी इलेक्शन हो रहा है तेलंगाना में, पैसा बिट क्या है, पूरा बांटा जा रहा है पैसा, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ वोट. सिटीजन तो दूर की बात है, पहले बिकम ए रेस्पॉन्सिबल वोटर. बिकम ए रेस्पॉन्सिबल वोटर, elect responsible people. Don't elect people who make politics the business of their life. बिजनेस करना हो तो धंधा करो, कोई जाके कोई पेशा करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, बट डोंट यूज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज ट्रस्ट. So many people, 1 lakh people, they elect in our area. 1 lakh is the assembly constituency. Parliament constituency is 7 lakhs. 7 लाख लोग एक आदमी को ट्रस्ट, उसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं. वो भरोसा का क्या कोई कीमत होता है? तो with these words, I don't want to, but I wish lot of issues have been raised on the constitution. We can discuss, but state formation के लिए जो है, हमको दिल्ली वाले अलग अलग भाषा बोलते हैं. हमारा, मुझे एक ही जीव है. दिल्ली के लीडरों को ऐसे डजन है, 1 डजन है. कभी इधर से बोलते हैं, कभी इधर से बोलते हैं, कभी इधर से, अलग अलग बोली बोलते हैं. आपने कहा लैंग्वेज. 1905 में एक भाषा बोलने वालों को अलग नहीं करना करके आपने मूवमेंट चलाया और मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ. लेकिन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन मजहब के दुनिया में कहीं भी जो है हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे देश नहीं बना. इस देश के इतिहास में कभी भी मजहब, रिलीजन वाज नॉट अ क्राइटेरिया. ज्योग्राफिकल लोकेशन वाज ए क्राइटेरिया, नॉट रिलीजन. ए नेशन कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन religion. Hindus one nation, Muslims, and Muslims separate country. Language. तो हमको 1957 में तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ निजाम स्टेट को और तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ तमिलनाडु को मिला है. अब अलग हो गए हम. तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा इस देश को जिस तरह अंग्रेज ने ऑर्गेनाइज किया उस बेसिस पे नहीं करेंगे, हम भाषा आधार पर करेंगे. विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. But you divided, as on today, all I want to tell you, there are Telangana and Andhra speak the same language. Ambedkar ने कहा कि there can be one state with 2 languages. इससे पहले उन्होंने कहा गुजराती के लिए अलग कर दिया, मराठी अलग कर दिया. But today there can be one state, more languages. मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं वो बिहार के हैं. क्या ये कहेंगे कि बिहार इज ए हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी स्पीकिंग स्टेट? मेरे ऑफिस में आधा लोग भोजपुरी बोलता है, आधा लोग मैथिली बोलता है. तो बिहार में भोजपुरी है, मैथिली है, हिंदी कहां से आ गया? हिंदी आया बॉलीवुड फिल्म में, कहीं नहीं है हिंदी. जैसे इन्होंने कहा मेघालय, कहाँ है मेघालय? अगर गारो है, काशी है, जैंतिया है, मेघालय भाषा थोड़ी है. अगर जब जैसे इन्होंने कहा अपने पनबियांग ने, अगर गुजरात है तो गुजराती बोलते हैं, तेलंगाना है तो तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र है तो मराठी बोलते हैं. मेघालय में क्या मेघालय कोई भाषा है क्या? फिर किस आधार पे किया आपने इसको? तो ऑल दीज आर्टिफिशियल डिविजन शुड गो सो दैट वी हैव ए न्यू इंडिया
नव भारत के लिए नवराज्य जरूरी है। जय हिंद, जय गोरखालैंड।